ہر گھنٹے کے بعد تقریباً معرفت کا ذکر کرتا تھا اور اللہ کا ذکر کرتا تھا، میری گھر سے بھی کرا۔ لیکن مقدر کی بات تھی کہ مجھے اجازت نہیں مل پا رہی، یہاں تک کہ میرے عزیز شاگرد شمشاد جی نے آپ کے سامنے واقعہ بتایا کہ رات کے 10 بجے بھی میں نے منع کر دیا تھا کہ میری اتفاق کی بات ہے، شاید اس کے دل سے کوئی آ نہیں، واقعاتاً استاذ کا اور شاگرد کا باپ اور بیٹے سے ذرا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ کبھی کبھی احساس ہوتا ہے اس چیز کا، میں تو بدقسمت ایسا ہوں کہ جس کو شاگردوں کی بہت کبھی فہرست نہیں ملی، تھوڑے شاگردیں میں اتفاق کی بات ہے، لیکن جو میرے شاگرد ہیں ان سے محبت اتنی ہے کہ میرا جی چاہتا ہے کبھی کم سے کم ان کو دیکھوں، ان کی محنتیں دیکھوں، ان کے پاس حاضر ہوں۔ وہ اس وقت میں جلسہ ہوا 2012 میں، اور اس جلسے کو بنیاد بنایا اللہ تعالیٰ نے، اور یہاں پنیری لگنا شروع ہوئی، اور تھوڑی سی پنیری کا ہر بوٹا، ہر درخت اور ہر شاخ کارگر نہیں ہوتی، کوئی ضائع بھی ہو جاتی ہے، کوئی کمزور بھی ثابت ہوتی ہے، کوئی جا کے بن جایا کرتی ہے۔ اللہ کا نظام ہے، ہر شخص ابو بکر صدیق نہیں تھا، ہر شخص عمر نہیں تھا، ہر شخص عثمان نہیں تھا، اور ہر شخص علی نہیں تھا، بلکہ فرق مراتب کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک 1,44,000 صحابہ کی فہرست کو دیکھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام بنایا ہے، اللہ نے اپنے اعتبار سے ہر ایک سے کام لیا ہے۔ اللہ نے آپ کے اس سپوت کو کامیاب کیا آپ کی دعاؤں سے، اور یہاں تک پہنچایا کہ اس وقت میں وہ جلسہ جو اس وقت میں آپ حضرات نے سنبھالا تھا، اسے مولانا شمشاد صاحب سنبھال رہے ہیں۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ ان سے خدمت لے اور دن دوگنی رات چوگنی ترقیات نصیب فرمائے۔ میرے دوستو، میں آپ حضرات سے، آپ میتھمیٹکس کے بہت زیادہ ماہر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بعض حضرات، میں ایک سوال کرنا چاہوں گا، 0 کو اگر 1 سے ضرب دیں تو جواب کیا ہے؟ 0 کو 1 سے ضرب دے دیں تو جواب 0، اور اگر اسی 0 کو 100 سے ضرب دیں، اگر اسی 0 کو 1000 سے ضرب دے دیں، لاکھ سے، کروڑ سے، جی ارب سے، خرب سے، نیل خیل سے، 0 جواب آئے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمْ۔ یہ ہے وہ 0۔ میری زندگی کے 40 سال اس دنیا میں گزرے ہیں، وقت آنے والا ہے جب اس 40 کو 0 سے ضرب لگے گی اور یہ 40 0 پہ آ جائے گا، محمد علی دنیا کے اندر نہیں تھا، ایسا صفایا ہو جائے گا کہ انسان دنیا سے مٹ چکا، ختم ہو گیا، مر گیا، یہ موت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اس سے بھاگو، کتنا بھاگو گے، کتنا بھاگو گے، کتنا بھاگو گے۔ ایک دن بھاگا، اس لیے بھاگا، کھیل کے لیے بھاگا۔ حضرت مفتی مبشر صاحب نے تفصیلاً آپ کے سامنے لہو لائف کا بیان فرمایا، اس طرح سے انسان کھیلتا 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 بوڑھا ہوتا ہے، مر جاتا ہے، ختم کھیل۔ بھاگا کس کے لیے؟ کھیل کے لیے، کبھی جوانی کے جوش کے لیے، کبھی مال کے لیے، کبھی بڑھاپے میں اپنی اولاد اور اپنے پوتوں کی رانائیاں دیکھنے کے لیے، اور کبھی اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرنے کے لیے۔ سارے نظام کو دیکھا، پھر اس کے بعد میں 0 سے ضرب لگ گئی تو کیا ہوا؟ جواب 0۔ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، اس سے تم بھاگتے تھے نا، فَإِنَّهُ مُلَقِيكُمْ، ملاقات کر کے، موت ملاقات کر کے رہے گی۔ وہ ایک دن ہر شخص کو آنی ہے، اور کیوں آنی ہے؟ موت کیوں آتی ہے؟ موت کیوں آتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک اللہ کی
मौत बुरी चीज नहीं है, मौत भागने की चीज नहीं है, मौत डरने की चीज नहीं है। मौत एक पुल है। क्या है? ब्रिज है। ये कैसा ब्रिज है? ये कैसा पुल है? युसिरुल हबीबा इलल हबीब। एक महबूब दरिया के पार रहता है, एक दरिया के पार रहता है, दोनों की मुलाकात दरिया नहीं करने देता। अब इनकी मुलाकात का एक ही वाहिद रास्ता है, वो कौन सा है? पुल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ वही पुल। अल मौत जसरुन युसिरुल हबीबा इलल हबीब। मौत एक ऐसा पुल है जो अपने महबूब को दूसरे महबूब से मिलाता है, यही मौत है। मौत एक ऐसा अच्छा जाम है जो इंसान को की रूह निकलने के बाद अल्लाह से मिला देता है। इंसान अल्लाह का महबूब है और अल्लाह इंसान का महबूब है। ये दोनों महबूब मिलते हैं मौत के जरिए से। मौत ही एक वाहिद रास्ता है जो इनको मिलाए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने मौत का निजाम रखा है, भागने की चीज नहीं। इन्नल मौतल लज़ी तफ़िरून मिनहु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम। आनी जरूर है, तो उसके लिए क्या करें? तैयारी कर लें। कैसी तैयारी करें कि फिर वो मीठी लगने लगे। कैसी तैयारी करें कि मौत मीठी लगने लगे, और फिर ऐसी मीठी लगने लगे, ऐसी मीठी लगने लगे कि जब ये मर रहा हो तो उस वक्त में इसको ऐसा लग रहा हो कि ये पुल कब क्रॉस हो, मैं अपने महबूब से मुलाकात करूं। बस इतनी सी बात आपसे अर्ज करनी। वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। आप हजरत ने तफसीली बातें हजरत मुफ्ती मुबश्शिर साहब से और हजरत मुफ्ती इरफान साहब से सुन ली है। मेरी एक ही गुजारिश है, अमल के लिए जुमला काफी होता है। अगर अमल ना हो तो हजारों जुमले बेकार जाया करते हैं। ये दुनिया अहले दुनिया को बसी मालूम होती है, नजर वालों को ये उजड़ी हुई मालूम होती है। मैं रोना अपना रोता हूं तो वो सुन सुन के हंसते हैं। मैं रोना अपना रोता हूं तो वो सुन सुन के हंसते हैं। उन्हें दिल की लगी है, दिल लगी मालूम होती है। मेरे दोस्तों, बस अमल की जरूरत है। अगर अमल पे हम खड़े हो जाएं तो हम आज भी कामयाब हैं और कल भी कामयाब हैं। कामयाबी का रास्ता ये है कि हम मौत की तैयारी कर लें। उसके लिए ये जो पनीरी लगाई गई है और ये जो मौलाना शमशाद साहब इस पनीरी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर मेहनत कीजिए, इसको आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इन हुफ्फाज की उलमा की कदर कीजिए, काबिल इसके कि ये उलमा और हुफ्फाज आपके सामने न रहे, इनको रहने न दिया जाए। रशिया का इनकलाब आया और फिर उसके बाद में जब सुलेबी वहां गालिब आ गए तो उन्होंने क्या किया? मर्दों को और औरतों को इकट्ठा मस्जिदों के अंदर जमा किया और मस्जिदों के अंदर से फिर निजाम ये बनाया कि एक दरवाजे से मर्द निकले, दूसरे से औरतें निकले। और फिर उसके बाद में कहा कि भाई मर्द अपने सर से टोपियां निकाल के एक जगह रख दो और औरतें अपने सर से बुर्का निकाल के वो एक जगह ढेर लगा दी। और फिर उसके बाद में जो ढेर लगे टोपियों के और बुर्कों के, सबको जला दिया। उसके बाद में कहा कि अब नंगे घर जाओ, अब तुम्हें कोई सर पे कुछ नहीं पहनना, ना मर्दों को ना औरतों। वो इनकलाब आया, कुरान पे पाबंदी लग गई। फिर कुरान उस मुल्क के अंदर लाना जुर्म हो गया। जो शख्स कुरान लेके एयरपोर्ट पे या बस अड्डे पे या ट्रेन स्टेशन पे पकड़ा जाता था, उसको सजा दी जाती थी और उसकी सजा ये थी 10 साल कैदे बामुशक्कत और उस वक्त 10,000 रुपया जुर्माना, या इस वक्त मान लीजिए आप 10 लाख रुपए जुर्माना। यह था कुरान लाने का जुर्म। और फिर उसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने वहां के उलमा को तौफीक बख्शी। उन्होंने कुरान की हिफाजत के लिए जमीन के अंदर गड्ढे खोदे और जमीन के ऊपर नहीं, जमीन के अंदर कुरान की तालीम शुरू हुई। जब वो पाबंदी हटी है तो हजारों की तादाद में हुफ्फाज और उलमा जो जमीन के अंदर से निकले ना, अब ये कहां थे? जमीन के अंदर अल्लाह कुरान की तालीम करवा रहा है। मेरे दोस्तों, ये घबराइए मत कि कुरान पे पाबंदी लगेगी तो मैं कुरान छोड़ दूंगा। दुनिया का बातिल इस बात को समझ ले कि दुनिया में अगर कुरान पे पाबंदी लगती है, मौलवी कुरान छोड़ देगा। दुनिया में नमाज पे पाबंदी लगती है, मौलवी नमाज छोड़ देगा। दुनिया में इस्लामी लिबास पे पाबंदी लगती है, मौलवी इस्लामी लिबास छोड़ देगा। दुनिया में दाढ़ियों पे पाबंदी लगती है, मौलवी दाढ़ियां छोड़ देंगे। ऐसा नहीं हो सकता। मौलवी मिट सकता है, कट सकता है, पाश हो सकता है, अपने आप को टेप के सामने पारा तो करवा सकता है, लेकिन अपना निजाम नहीं छोड़ सकता।
छोड़ा है, अल्लाह का फजल। मेरे दोस्तों, दुनिया के अंदर अगर इंसान चाहे तो हर चीज को इबादत बना सकता है। सियासी लोग जो हैं, ये सियासी लोग क्या करते हैं, ये आमतौर पे अपने आप को दीन से बड़ी समझते हैं, झूठ भी बोलते हैं और कहते हैं कि सियासत तो है ही झूठ करना। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ शायद आप जरा समझते हो। मैं बहुत भी सियासत, अल्हम्दुलिल्लाह 4 साल हो गए, मैं भी सरपंच हूँ, लेकिन 4 साल की सरपंची में कोई शख्स ये सबूत नहीं दे सकता कि मैंने कहीं झूठ बोला। मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अब हमारे सियासी लोग क्यों कहते हैं कि झूठ बोलते हैं, गलत कर रहे हैं, अपने आप खराब कर रहे हैं। दूसरी बात, सियासत एक खिदमत, सियासत क्या है, खिदमत है। आप सरपंच हैं, आपने किसी गरीब की मदद करवाई मनरेगा स्कीम के जरिए से, 14FC के जरिए, 15FC अब आ गया, उसके जरिए से आपको बंदी हो गए क्योंकि यूटी है, उसके अलावा वगैरह वगैरह जो जितने प्लान है उनके जरिए से आपने किसी गरीब की मदद कर दी और गरीब की मदद हो गई, उसका चूल्हा जल गया, क्या ये इबादत नहीं? लेकिन नीयत बदलने की जरूरत है, नीयत बदलने की जरूरत है। मुझे इसमें बहुत तफसीली बातें कहनी थी क्योंकि कुछ चेहरे मेरे जाने पहचाने और चाहता था कि उनसे कुछ तफसीली बातें बड़े दिल के साथ, दिल के गुदास के साथ, दिल की नरमी के साथ मैं बात करता, लेकिन मसला ये है कि वक्त नहीं है। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा, आप हजरात को अल्लाह तबारक व तआला ने अगर इक़्तिदार नसीब फरमाया है तो आप हजरात इस इक़्तिदार को खिदमत के लिए इस्तेमाल करिए कि ये इक़्तिदार हमें खिदमत के लिए मिला है, हम कौम की खिदमत कर रहे हैं। खिदमत करने वाले को हर शख्स बुरा कहता ही है और हर शख्स तो बहुत दूर की बात है, जिसकी आप खिदमत करेंगे वो आपकी मुखालिफत करेगा। होता है आमतौर पे, मुखालिफत से घबराइए नहीं, आप आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, नमाज रोजे की पाबंदी कीजिए, सच बोलिए और खिदमत करते रहिए, खिदमत में लगे रहिए। इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपकी नीयत को देखते हैं। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम, अल्लाह तुम्हारी सूरतों को और तुम्हारे मालों को नहीं देखता, वलाकि यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, अल्लाह तुम्हारे दिल की नीयतों को और तुम्हारे अमाल को देखते हैं। लिहाजा दिल की नीयत दुरुस्त करके अपना अमल दुरुस्त कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह तबारक व तआला आपसे बहुत बड़ा काम ले रहे हैं और आइंदा भी लेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक नसीब फरमाए। नमाज में सिर्फ 5 मिनट बाकी हैं, नमाज के बाद